Awasthi, Joint Director WCD Madhya Pradesh, to come on the dais. Mr. Ameya Vanzari, COO Tata Strive. Mr. Aniket Mahulikar, General Manager Girivanvasi Sanstha Nareshwadi, Balgraha. Tyagarajan Palani, Trustee and Volunteer of Vinimay Trust. And to moderate this panel, I would like to request Alpa Vora ma'am, Child Protection Specialist UNICEF. The corporates, civil society as well as CCI, and I think this session is really to look at how can collaboration, how can partnerships, how can there be more investment, more work around this area, because as we've seen in the pre-lunch session, the coming together is really creating the shift and really creating the energy for advancing aftercare in the country. So welcome all of you. I think we will not spend too much time on the introductions because you have already been introduced by the CSA representative, and there is a profile of all the speakers in your folders inside, so please do look them up because they are doing some phenomenal work in this area. So like we were saying, that we have a representation of different stakeholders with us on the panel, and the idea also is to understand where are the gaps that they feel from their own perspective, from where they are sitting, from the work that they are doing for caregivers, and how can collaboration and how can more investments come forth. So I'd like to actually start with you, Aniket. Aniket, you are working with Nareshwadi Child Care Institution in Dahanu. And there's a lot of work and focus that you've given on education and livelihoods development. So tell us, as a CCI, where are you seeing the challenges for caregivers, for preparing children to transition out of institutions and live independently, self-sufficiently? What all needs to be done? What else needs to be done? And what are your thoughts about the collaboration? Sure. So, you have the mic, sir. am I audible? Yeah, so good afternoon everyone. Thank you, and very honored to be a part of this esteemed panel. Thank you for asking this question. It's a very important question about as CCI. So I am talking on behalf of CCI, one of the CCIs that we run in the tribal area of Dahanu, Palghar district. So we are running a CCI in the tribal areas of Dahanu, Palghar district, close to the borders of Maharashtra and Gujarat, in Maharashtra. So from a CCI perspective, and I take liberty to speak on not for all CCIs, but I'm in a way representing CCIs, so maybe I'm taking that liberty somewhere. Yes, I think from morning we have been looking at how collaboration is critical and what are our caregivers capable of. We saw a wonderful demonstration, but also then that brings to the point कि gaps कहाँ पे आ रही है फिलहाल, और gaps तो है. Let's be also honest कि what we saw today was almost like the higher end of what's possible. क्या वो reality सारे बच्चों की है for every child? Not right now. So a few things. I think just before lunch, one of my friends out here raised an issue of identity documents. So वो एक issue हम face कर रहे हैं as CCI, क्योंकि कभी-कभी the identity documents के होने या ना होने की वजह से some of the opportunities get limited. Like an example, a caregiver from our CCI wanted to pursue a course, a professional course in hospitality industry, but आधार कार्ड नहीं था, तो उनको वो कोर्स करना पड़ा, लेकिन एक इनफॉर्मल वे से करना पड़ा, क्योंकि आधार कार्ड होगा तो ही then he would have got a official government certificate. One of our caregivers wanted to pursue higher education, but वो हमारे यहाँ पे जब आई थी CCI में, she had come in grade 5, grade 6, she had come from the state, और वो transfer certificate को उसका हो ही नहीं पाया, so eventually she couldn't get a domicile and she couldn't appear for her, the state board 10th SSC examination. So ये couple of examples हैं जो बहुत सारे CCI में दिक्कतें होती हैं, and these problems are not just for
we face these problems for the normal functioning also, but ये केयर लीवर्स के लाइफ के पड़ाव में बहुत इंपॉर्टेंट आ ही जाता है. तो एक वो मसला मैं रखना चाहता हूँ. और एक दो पॉइंट्स CCI की तरफ से हमें क्या लगता है कि हम और क्या कर सकते हैं. हम तो कोशिश करते ही हैं. कभी कभी हमें लगता है कि CCIs need to also be like, maybe I can speak only for our CCI, कि we need to take more ownership of our children, कि 18 के बाद वो जा रहे हैं लेकिन बच्चे तो हमारे ही हैं. तो समटाइम्स वो गैप आ जाती है कि वो ओनरशिप किसकी है. आफ्टर 18 वो बच्चे CCI के हैं, वो DCPU उनमें कंट्रोल कर रहा है, NGOs में कंट्रोल कर रहा है. तो a lot of partners get involved, and sometimes when lot of people get involved, nobody takes ownership. So sometimes children they slip off in that lot of people coming together. So as a CCI person, I would say we need to take pull up our sleeves and start preparing them for real world scenarios and not wait for 18. तो हमने सुना कि 15 साल से ऊपर कोशिश शुरू हो जाती है. Those efforts happen in our CCI also. CSA has been working with us wonderfully for last 8 years. लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है जहाँ पे रियल वर्ल्ड फेस करने के लिए, जैसे हमारे बच्चों, अवस्थी सर ने कहा था, हमारे बच्चों का हम जो सोचते हैं 18 साल के बाद क्या वो केपेबल है खुद के बच्चे, तो क्या हमारे 100 बच्चे जो CCI में हैं उनको हम केपेबल कैसे बनाएं. तो लाइफ स्किल्स आ जाती है, फाइनेंशियल स्किल्स आ जाती है, इमोशनल स्किल्स आ जाती है, प्यूबर्टी की स्किल्स आ जाती है. कभी कभी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से बाहर when they are suddenly let off, they are not able to handle the freedom, and that's a big skill we need to teach our children कि how do you handle freedom, because उनको लगता है now I can do anything I want, and that's such a responsible value to possess freedom, and they are never consciously taught that because it's all controlled, it's all given to them, and now they have to start earning for it. So these are certain things which I think कि from the ecosystem wise also and the CCI point also, ये 2-3 पॉइंट मुझे लगता है काफ़ी important है. So I think that's very well highlighted. ये पुरावे की जो बात है या और इसी में बसती है ये बात कि one will need to work beyond the DWCD. One will need to collaborate with other agencies that are then providing some of these essential services, essential documents and other things that will allow for a smooth exit out of the institution. So Avasthi ji, I think the next question is to you, because I think already Aniket has raised some of those issues, and you as the Deputy Director for the Mission Vatsalya in Madhya Pradesh have also taken a lot of initiatives to collaborate with other departments. And I think you yourself have worked in various departments of relating to finance, relating to economic empowerment, skilling, tribal, and now you are with Mission Vatsalya and WCD. So can you also share some examples of how this convergence is being built, how the collaboration is being established, and what more needs to be done? Thank you. Thank you, ma'am. सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आफ्टर केयर पे इनवाइट करने के लिए बात करने का. हेलो Yeah. हेलो, Yeah. आई एम ऑडिबल. Yes. तो जो सबसे पहले मैं ये जो आफ्टर केयर पे वर्कशॉप हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर इनवाइट करने के लिए मैं CSA को थैंक्स कहूँगा. बहुत ही शानदार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस है और निश्चित तौर पे जब शाम को हम यहाँ से जाएंगे तो एक अच्छे कुछ ऐसे सुझाव भारत सरकार को दे सकेंगे और ऐसे मुद्दे उठा सकेंगे जो निश्चित तौर पे केयर लीवर्स, जो हमारे सामने अभी कुछ 5-6 केयर लीवर्स बैठे थे, केवल उनकी बात नहीं है, हम सारे केयर लीवर्स की बात कर रहे हैं जो CCI से निकलते हैं. पहले आपने कहा कि गैप्स कहाँ हैं. गैप्स वहीं पे है जहाँ आपने कहा कि 50,000 के लगभग केयर लीवर्स निकलते हैं. CSA लगभग 700 बच्चों को कैटर कर पाता है. दूसरे NGOs भी साथ में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट भी लगी हुई है. गवर्नमेंट भी बहुत ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम्स चला रही है. मुझे लगता है उन प्रोग्राम्स के बाद ऐसा कोई भी एरिया नहीं छूटता है जहाँ पर कि हम ये कहें कि बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है. केवल जो मिसिंग लिंक है, जिसको मैं मिसिंग लिंक ही कहूँगा, कि वो मिसिंग लिंक क्या है, इसको ढूंढने की ज़रूरत है. कई बार हम देखते हैं, अभी बात हो रही थी पालघर से एक आई हुई एक्टिविस्ट यहाँ पर आई हुई, एडवोकेट आई हुई हैं. उनने बताया कि बच्चे का जो प्रॉपर्टी का इशू है
और वो बिफोर 18 उसके फादर मदर की डेथ हो गई, और जब वो आफ्टर 18 जब बड़ा हो गया तो महिला बाल विकास ने हाथ खींच लिया, WCD ने हाथ खींच लिया कि नाउ ही इज एडल्ट। तो इशू यही है कि जितने भी प्रोग्राम्स जितने भी स्कीम्स बनी हुई हैं, जितने भी दूसरे प्रोग्राम्स हैं, उनको कैसे हमको टेकअप करना है। तो अभी हम अपने को कन्फाइन करते हैं, जितने भी NGOs हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं साथ में, डोनर्स हैं जो काम कर रहे हैं साथ में, वो हम बच्चों तक अपने आप को सीमित करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये पूरा सोचना है कि यदि हम उन प्रोग्राम्स के लिए भी थोड़ा सा अपने लोगों की हैंड होल्डिंग करें, लोगों को बताएं, जितने एडवोकेट्स हैं उनको बताएं, CWC के लोगों को बताएं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जहां पे हम बच्चों की मदद इस तरह से कर सकते हैं। इतने तरह के प्रोग्राम्स बने, स्कॉलरशिप के लिए प्रोग्राम बने हैं। मैंने अभी आपसे कहा, सबसे बताया मैंने कि जहां बात आती है कि बच्चे के प्रॉपर्टी राइट्स की, प्रॉपर्टी के इश्यूज की, तो वहां पे यदि आप इंडिविजुअल केयर प्लान को देखेंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि जब वो, और कब बनना है इंडिविजुअल केयर प्लान, कि बच्चा जैसे ही CCI में एंटर होता है उसी समय इंडिविजुअल केयर प्लान बन जाता है। हम सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं कि ये बनना है, ये इस तरह से बनता है, और उसके बाद आपको मालूम है कि शुरू के 3 महीने में हमको हर 15 दिन में उसको फॉलोअप करना रहता है, और 6 महीने के बाद हमको हर 1 महीने में उसका फॉलोअप करना है। एक बार लिख के हमको उसको नहीं छोड़ देना है। कैसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आयुष्मान कार्ड है उसका उपयोग कर सकते हैं। बार बार ये बात आती है कि बच्चों के लिए हेल्थ इमरजेंसी फंड नहीं है, बट यू नो कि इमरजेंसी हेल्थ फंड या इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए आयुष्मान कार्ड यदि बच्चे का बना होगा तो हमें उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, और किसी भी सर दर्द या बुखार या दांत में दर्द के लिए आपको रात में किसी बच्चे को एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आयुष्मान कार्ड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड आपके पास नहीं है। बच्चा, मैंने बहुत सारे CCI में विजिट किया है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं CCI, लेकिन कई बार ये होता है कि जब हम बच्चे के बारे में पूछते हैं कि वहां आयुष्मान कार्ड है क्या, तो पता चलता है कि अलमारी में 3रे नंबर के खंड में 4थे नंबर के डब्बे में वो आयुष्मान कार्ड कहीं धीरे से निकाल के बता रहे हैं कि ये 7 बच्चों का तो बना है, 2 बच्चों का अभी भी नहीं है। फिर उसके बाद जो आधार कार्ड बनाने की बात है या उसको राशन कार्ड की फैसिलिटी, राशन की फैसिलिटी देने की बात है, वो हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। उसको हमारे यहाँ पात्रता पर्ची कहते हैं कि बच्चे को राशन की फैसिलिटी मिलना है तो उसके लिए पात्रता पर्ची हम नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे NGOs हैं, वो क्या कर रहे हैं। नो डाउट कि मैं अपने जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन यदि हमारा एफर्ट नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पे जो NGOs हैं उनकी क्या भूमिका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को कितना वेल इक्विप्ड हम कर पा रहे हैं। बच्चे को आपने कहा कि CICL, देखिए 2 तरह के बच्चे करते हैं, एक CNCP बच्चे की बात करते हैं, एक CICL बच्चे की बात करते हैं। आप सबको पता है कि 18 इयर्स में जो CNCP बच्चा है, मुझे लगता है कि 12th क्लियर नहीं कर पाता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि उनका मेंटल लेवल थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा CICL की तुलना में। वहां पर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी हम ख्वाब तो दिखा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो उसको जॉब बहुत अच्छी सी मिलना चाहिए, और हम चाह रहे हैं कि उसको हम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हम जोड़ दें या और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ उसको कनेक्ट कर दें और उसको वहां पे ट्रेनिंग के लिए भेज दें। हमारे यहाँ स्कीम है, हम बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलाते हैं, जिससे बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, जिससे बच्चा हायर एजुकेशन में जा सकता है। आफ्टर केयर प्रोग्राम के लिए बनाया हुआ मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट, अब मुझे नहीं मालूम हमारे बाद और किसने बनाया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर विशाल नाडकर्णी बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने इनके समय में माननीय मंत्री जी जो महिला बाल विकास की थी, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कोशिश की और बाल आशीर्वाद योजना बनाई, जिसमें हम ऐसे बच्चों को आफ्टर केयर के लिए हम उनको हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा देते हैं, 5000 रुपीज़ देते हैं, इंटर्नशिप के लिए देते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए देते हैं। तो हम कोशिश कर, हमारे पास स्कीम्स हैं, लेकिन वहाँ पे सारे लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बोलिए। और शायद एक ऐसे
व्यक्ति या एक ऐसे सेल की आवश्यकता है जो ये कन्वर्जेंस को प्रस्तापित करेगा। हाँ, क्योंकि वो फैसिलिटेट करना एक बहुत बड़ा गैप भी दिखाई देता बिल्कुल है। एक बात आती है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, जैन साहब ने एक अच्छी बात कही, जैसे ही हम आफ्टर केयर की बात करते हैं, आफ्टर केयर में जैन साहब ने कहा कि बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, बच्चों के लिए कोई जॉब नहीं है, बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, बच्चों के लिए कोई शेल्टर नहीं है, नो हेल्थ फैसिलिटी, नो इमरजेंसी फंड। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम बने हुए हैं इनके लिए, केवल हमें उनको जोड़ने की जरूरत है, केवल कोलैबोरेट करने की जरूरत है, केवल कनेक्ट करने की जरूरत है, केवल बच्चों को वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। यदि आपका सहयोग यदि मिले, हमको एनजीओज का सहयोग मिले, तो हम शायद सारे लोगों तक वहां पहुंच जाएंगे। कई बार हम लोगों की थोड़ी दिक्कत रहती है, कई बार स्टाफिंग की दिक्कत हो सकती है, कई बार और दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। मैं बात कर रहा था कि हम बार बार कोशिश करते हैं कि इनको इंडिविजुअल केयर प्लान या आफ्टर केयर प्लान बनाने में उनकी मदद करें। जो हमारे सीसीआई के फ्रेंड हैं, आप बैठे हुए हैं, यानी कि साहब बैठे हुए हैं, सीसीआई से आते हैं, जो हमारा स्टाफ है, अगर इनको हम बार बार इस चीज़ की ट्रेनिंग दें तो शायद वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। प्लीज। आई थिंक ये जो मुद्दा है कि बहुत सारी we have a lot of schemes, we have a lot of programs, we have a lot of services. The issue is now how do we make the access smooth and seamless so that the children actually are able to, I mean, we are able to bridge the gap between things being available but not reaching the children. So मैम एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि मैं क्या एक बात और कह सकता हूँ कि मेरा ये कहना है कि जैसे ही हम बच्चों को, जो CNCP बच्चे हैं हमारे या जो CCI में जो बच्चे रह रहे हैं, बच्चा आ गया, उसके बाद हमने सोच लिया कि ये बच्चा तो मेरा है ना, 18 साल तक उसको यहीं रहना है। जबकि आप ये देखिए कि हमारा या मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन कहती है, हम सब ये कहते हैं कि बच्चे का लास्ट रिसॉर्ट नहीं है ये, उसको तो घर भेजना चाहिए, उसके घर पुनर्वास का प्रयास हमको करना चाहिए, घर में भेजने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए हम लोग कितना काम करते हैं। तो हो सकता है कि जब वो 10 साल का था तो उसका फादर ड्रंकार्ड था और वो बच्चे की मदर को मार रहा था, जिसके कारण बच्चे ने घर छोड़ दिया। लेकिन क्या 14 साल 15 साल का जब बच्चा हो गया तब भी उसको वहीं रहने की जरूरत है? तो ये इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आई थिंक ये प्रयत्न शुरुआत से होना बहुत आवश्यक है। एंड आई थिंक पल्मी सर, आप अगर हमें बात कह सके, त्यागराजन पल्मी विनिमय ट्रस्ट के हैं और उन्होंने काफ़ी काम हाउसिंग पे किया है। इवन रेस्टोरेशन की बात जो अभी सर ने बताई, अवस्थी सर ने बताई, उस पर भी बहुत प्रयत्न रहा है आपका। तो पल्मी सर, आप जरा हमें बता सकते हैं कि ये जो आवास की समस्या है जिसके बारे में मैं सुबह में भी काफ़ी बात हुई थी, कैन यू शेयर विद अस व्हाट आर द वेज इन विच Vinimay Trust has tried to advance the housing and safe housing and a more stable housing for young people, और उसमें और किस तरीके के अप्रोचेस को हम अपना सकते हैं? Sure. आवाज़ आ रहा है सबको? तो ये एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेड टाइम स्लॉट से आगे लेके आ गया। Yes. तो ज़रा आप लोग भी सुनना पड़ेगा, जो नींद का टाइम है हम लोग ले लिया आपका। तो वहाँ से शुरू करते हैं। और एक्चुअली मुझे लगता है एक बड़ा गैप, हम सब लोग गैप का बात करते ही रहते हैं, तो एक गैप है कि सही में आफ्टर केयर का ज़रूरत है क्या? जैन साहब ने तो बोल दिया कि है करके, तो है, ठीक है। तो हम सोचना चाहिए कि है क्या नहीं, उसका डेटा रहना चाहिए कि सही में कितने लोग को चाहिए आफ्टर केयर। क्योंकि एक तरह से हम बोल रहे हैं कि ज़रूरत है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जगह पे गैप्स है, मतलब हॉस्टल फुल नहीं हो रहा है। बहुत 3-4 तो मैं हाल ही में लास्ट वीक में सुना कि उधर कैंडिडेट्स आ नहीं रहे करके। तो ये ज़रूरत है कि किधर तो गैप हो रहा है, उधर एक अलग टाइप का गैप हो रहा है, तो वो समझना ज़रूरी है। वो समझने के बाद मुझे ये लगता है कि हमें डेटा चाहिए कि इसमें से कितने लोग घर जा सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि घर जाना चाहिए, फैमिली बहुत लोग बोल रहे हैं कि घर जाना चाहिए, तो सही में जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, किसको आना है ये आफ्टर केयर होम में। शायद हम जब इंटरव्यू करते हैं विनिमय ट्रस्ट में, कोई लड़का बोलता है हमको आना ही नहीं है, हमको आज़ादी चाहिए, फिर से एक सिस्टम में नहीं आना है, बहुत अच्छी बात है। और एक सिस्टम होना चाहिए, हम समझना चाहिए कि इसमें से कोई लड़के, काफ़ी लोग बात किया, सर ने बोला सही नहीं, इन्होंने बताया कि
आज हमने जो 5-6 देखा वो एक शायद हायर बेंच लेवल है, बहुत लोग उस पर हाई ही नहीं। शायद हमारे पास एक सिस्टम रहना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि इनको आफ्टर केयर का शेल्टर देना पड़ेगा, शायद उनको लेके जाने के बाद ही ये, क्योंकि हमारा काम शायद लाइफ टाइम चलना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग 18 to 21 है, 18 to 25 नहीं है, हम हमारे बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड है, तो हम लगता है कि इनके साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहना चाहिए, उस पर कोई शक ही नहीं होना चाहिए। किसी तरह से हम लोग इसको कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है लगता है। एक बार ये डिसाइड हो जाएगा तो हमें लगता है कि हम ICP जो बार बार बोलते हैं उनको पहले से ही बताना चाहिए। हमारा अनुभव यही था कि हम जब 16 या 17 में ही देखा था कि इनका डर बैठ गया था कि अभी मैं 18 में बाहर जाके क्या करूँगा करके, बोथ गर्ल्स एंड द बॉयज़। तो ICP में एक डिफाइन होना चाहिए कि इनका प्रोसेस में ये सब स्टेप्स क्लियर हो गया, ये तैयारी हो सकता है करके। जब ये हो गया तो हम अगर बात करें हमारा तरुण सदन या बहुत सारे संस्था का, तो हम समझते हैं कि सेफ होम क्या होना चाहिए। उस पर एक 7-8 पॉइंट हमने सोचा। एक है कि फर्स्ट इज वो जब आता है उसको एक अवेयरनेस काउंसलिंग होना चाहिए कि ज़िंदगी का अनुभव या ज़िंदगी का हकीकत यही है, कुछ अलग नहीं है। जैसा वो लेडी का याद ने ठाकुर बहुत अच्छे से बात किया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा पेरेंट्स नहीं है ये मुझे नहीं लगता बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, पता भी नहीं है कैसा एक्सेप्ट करने का, बोलने का करके। शायद फर्स्ट स्टेप वही होना चाहिए कि उनका लाइफ का असलियत क्या है, कि कोई शर्म नहीं है, जो है कि ईजी है शायद हमारे लिए बोलने के लिए, बट उसका एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा कि ये होना ज़रूरी है। उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट आएगा उसका हेल्थ। 18 हो गया तो हेल्थ का समझना जरूरी है, तो हम विनिमय में हम डेफिनेटली उसका पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं कि उसको कुछ भी ज़रूरत है तो उसका तैयारी करना ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स, हम सब तैयार करते हैं, राइट फ्रॉम वोटर कार्ड टू आयुष्मान भारत, अगर करेक्शन एड्रेस चेंज करना है, पैन कार्ड, और उनका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये तो हो गया। फिर उसका एजुकेशन के लिए तैयारी करना है, उस पर भी अगर किसको स्किल डेवलपमेंट करना है या एकेडमिक फॉलो करना है, तो हमारे इधर हम लोग एकेडमिक के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। साइड में ऐसे क्या बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी का दिखता है, बट हमारा रश रहता है। क्यों रहता है? हमको लगता है 3 साल में उसको तैयार करके रखना है। सब लोग बोलते हैं 3 साल में नहीं होना चाहिए, हम 19-20 साल भी नहीं करते, बट हमारे इधर उतना टाइम नहीं है। हमारे इधर मतलब हम इन जैसे बच्चों के साथ काम करते हैं, हमारा बस 3 ही साल है मैक्सिमम। ये 3 साल में उसको कैसे तो खड़ा करने का, पढ़ाई कभी भी हो सकता है, लेकिन ये 3 साल में उसने जो एक्चुअली होना चाहिए था 6 से 18 में, हम अब ये 3 साल में तैयारी करना चाहते हैं कि किसी तरह में दुनिया फेस करो, पैसा बनाओ, पैसा बचाओ, लोगों से बात करो, आप बोलना है या मैं बोलना है, किसको तू बोलना है, ये सब हम सिखाने को देखते हैं। 3 साल में बहुत कन्फ्यूजन है, बट हम करना चाहते हैं और वही कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए, और हर चीज़ जो एक नॉर्मल लाइफ के लिए होना चाहिए, हम उसका तैयारी करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश करते हैं, कोई सेफ होम में, हमारे हिसाब से सेफ होम में अगर उसने कोई हैबिट पकड़ लिया, ड्रग्स ले लिया, ये हमने कभी बात नहीं किया, करना चाहिए लगता है, हम उसका रिहेबिलिटेशन के लिए भी तैयारी करते हैं। वी हैव ऑल ऑलमोस्ट, जब हम करते हैं बोलते मतलब हम नहीं करते, हमारे साथ बहुत सारा पार्टनर्स है, लाइक डॉन बॉस्को है, सपोर्ट ग्रुप है, वो हमारे को हेल्प करते हैं इस प्रोग्राम में। एंड लास्ट होता है हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में बोलो या सेफ होम की सबसे फैमिली ट्रेसिंग करते हैं, जो एक्चुअली अगेन उधर होना चाहिए था, वो मिस हो गया है। हम इधर ऐसे मैंडेटरी प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एंड हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बिकॉज हमारे लिए वो एक सेफ होम हो जाता है फिर से, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये 21 साल के बाद निकलने के बाद उसका और एक सेफ्टी नेट है, उसका फैमिली है, जो भी है वो गरीब है, जो भी है एक सेफ्टी नेट हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये सब पॉइंट्स के हिसाब से। और इसमें मैं एक कोट करूँगा डॉक्टर विजय राघवन ऑफ TISS के, वो कहा कि हर एक इंडिविजुअल, हम सब के लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, और एक क्या बोलता है उसको जॉब एनवायरनमेंट होना चाहिए, और हमारा एक क्या बोलता है हैबिट्स नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हम सब के लिए लागू होता है, ये सब CCI केयर लीवर्स को भी होना चाहिए। हम ये अगर मुद्दा ब्रॉडली रखें कि ये 4-5 चीज़ हम सब लड़का या लड़कियों को होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक सेफ जोन या सेफ होम हो सकता है। विनिमय ट्रस्ट काफ़ी हद तक वो फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट ये जो 3-4 एरियाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स है, उस पर अगर हम देखेंगे तो हम समझते हैं कि एक है कि फैमिली में ही जाना चाहिए।
अगर जिसका भी फैमिली है प्लीज़ जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आफ्टर केयर शेल्टर में आया करके उसको बाकी कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका परिस्थिति उतना ही टाइट था, शायद एक सपोर्ट ग्रुप में आता है या होम में आता है या घर जाता है, घर का परिस्थिति कुछ फर्क नहीं हुआ है, तो हमें लगता है कि उनका जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, एजुकेशन बोलो, पढ़ाई बोलो, हेल्थ बोलो, जॉब बोलो, काउंसलिंग बोलो, वो पूरा उसी तरह का मॉनिटरिंग होना चाहिए जिस तरह से आप अगर बोल रहे हैं कि एक सेफ होम में आता है, वो उधर भी उतना ही डिफिकल्ट है, तो वो हो सकता है। सेकेंड है कि आज के तारीख में, क्योंकि हम जैसे तरुण सदन, हम एक हॉस्टल चलाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर चलाते हैं, ग्रुप होम हो सकता है, काफ़ी एक अच्छे से प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है वो ग्रुप होम इज़ द रियल वर्ल्ड, बिकॉज वो कम्युनिटी में रहता है, कम्युनिटी में उसको ग्रोइंग हो सकता है, अगेन विद मॉनिटरिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग, सब कुछ होना चाहिए। मेंटरिंग इज अ वेरी बिग रोल, एज समबडी पूजा आई टोल्ड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट। थर्ड हो सकता है, मुझे कभी कभी लगता है कि हमें बहुत जन पूछे कि आप क्यों नहीं ऑल इंडिया लेवल पे लेके गया, हम ऐसा ग्रुप हमने कभी सोचा नहीं था, बट आज हमें मालूम है, वी लीव है, आशियाना है, बहुत सारा ग्रुप है, उड़ीसा में ग्रुप्स है, इन सब का, या तरुण सदन, इन सब का बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके इतने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, हमें नहीं लगता है 50,000 के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, हम रेप्लिकेट कर सकते हैं मॉडल्स, हम श्योरली सोचते हैं कि इसका बेस्ट आइडियाज़ क्या लेके सिंपल वे, उसका अलग अलग डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल्स आज नहीं सोच सकते, बट डेफिनेटली उसका एक डेफिनेट रेप्लिकेशन हो सकता है गुड प्रैक्टिस के हिसाब से। लास्ट मुझे लगता है, मैं जब सोचता रहता हूँ, आज मुझे लगता है IDFC बैंक वाला ने हाँ बोल दिया, तो हम उसका पूरा एक्सपीरियंस, ये क्या बोलते हैं, फ़ायदा उठाना चाहिए और उस पर, ताकि मुझे लगता है राइट फ्रॉम, मैं लगता है मैं सरकार को बोलूँगा कि एवरी चाइल्ड हू कम्स इनटू द इंस्टीट्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी डिजिटली रिकॉर्डेड, और उसका पूरा ट्रैकिंग एक ही सिंगल रिकॉर्ड होना चाहिए। उसका शुरू में 5 इयर्स या 6 इयर्स में या अंडर ऑब्जर्वेशन होम में आया तो वहाँ से उसका एंट्री होना चाहिए और उसका पूरा ट्रैकिंग होना चाहिए, और जब वो निकलता है आफ्टर 18 उसका एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि है। तो हमको डायरेक्टली आज हम बोल रहे हैं कि अंदाज में 50,000 है या असलियत में 50,000 है, पता नहीं है, ये यूजुअली हमको डेफिनेटली डेटा मिलना चाहिए, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है, मुझे लगता है रिकॉर्ड डाल देना है, सेंट्रल डेटाबेस रखना है और उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये रिकॉर्डिंग अगर हो जाएगा, हमें लगता है साइड में हम जैसा एडमिशन प्रोसेस करते हैं कॉलेजेस का, हम सब आफ्टर केयर होम का एक डेटाबेस रख सकते हैं, और हमारा साथ जैसा बोला सर ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करेगा, उसको मैप करके हम एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं, बी इट एनीवेयर इन द कंट्री, इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स। एंड मुझे लगता है उस पर शायद रिवर्स एडमिशन होना चाहिए, जिसका सबसे पुअर स्कोर है उसको पहला एडमिशन देना चाहिए टू इनटू एन आफ्टर केयर होम, जो बहुत ब्रिलियंट है उसको छोड़ दो, उसको चिंता नहीं करना है। तो मुझे लगता है इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू। संकल्पना है हाउसिंग की, इट्स नॉट जस्ट 4 walls and a roof, it is so much more। और अगर वो स्टेबिलिटी की एक जगह मिलती है तो ये सारे जो सोशो इकोनॉमिक spiritual, financial aspects can be dealt with. So really some very good suggestions. और data का जो बात आपने रखा कि data so that services can follow, absolutely, so that needs can be identified and going beyond just collecting data for its sake. So thank you so much, Palni sir, and I'd really like to go to our last speaker, Amey Vanjari. He is with Tata Strive, and I think Tata Strive has done some amazing work on skilling with caregivers. So tell us about the work that you do, and also how do we upscale the whole skilling and vocational training as well as job, facilitating jobs for young caregivers. Sure. So thank you ma'am, and thank you CSA for inviting me into this event. And at the outset I'd like to give a small overview, what is Tata Strive, हम क्या करते हैं, and what is the work that we do, and then I'll come to the question per se. So Tata Strive is a skill development initiative started within the Tata Group about 10 years ago. So we are in our 11th year of operations. In the last 10 years we are operating various centers. Today we are operating about 50 centers ourselves, and all of you are doing amazing works. The ecosystem of CCI and aftercare, you work with children for years together, and 3 years or 4 years, but we work with children for a very short span of time. It's a 3 months or a 6 months course that we offer to the youth between 18 to 25.
these courses are very specifically oriented for livelihoods, for gainful livelihood. So be it jobs or entrepreneurship or collective enterprises like an SHG for women, or even men these days can have collective enterprises. That is the outcome that we work towards. The youth who comes to us, they get skilled in various courses. We have about 50 plus courses across various industries. These courses are 3 months to 6 months courses, and they get, we work with them to get a job in an industry or start a business of their own. Post which we get in touch, we keep in touch with the youth who come to us, with our students for a period of a year, year and a half. And post that, again, we keep on checking about how well they are doing on a regular basis, but that is only a phone call every couple of years. That's at a broad level, that's the work we do. We also work with various academic institutes, but I'll keep that aside. I think the integration is with you all is in the centers that we run directly. And when I received this invite, I was not aware about the integration that already existed. So I actually checked with the team, and thankfully, being part of the Tata family, we had access to TCS, and a lot of digitization, as you said, has been done. So हमारा सभी काम पिछले 10 साल का, it is digitized and it is there in the system. And we looked up कि how many students have been referred by CSA, and even last year about 50 youth who were referred by CSA, and happy to see that out of those 50 that came to our centers, few of them, at least 15 of them, I think, were rejected for certain reasons. Now those reasons could be probably documentation, those reasons could be age, because they have to be 18 plus. Those reasons could be their interest, and the courses that we offer do not match. Could be various reasons, but I haven't looked up what are the reasons, but there were those reasons why they were rejected. But out of the ones who are selected, more than 25 of them are working, and which was nice to see, which was very heartening to see. And then I requested my colleague Shivani to speak to a couple of them to understand their history, how they are, what their life has been, and so she spoke to a couple of our students who was referred by CSA, and happy to learn that both of them were working in Pune, one in Prisma and one in Lifestyle, earning about 15 to 20,000 per month. And one of them had actually enrolled for graduation, and the other one is planning to enroll for graduation. So hearing that, I found it to be heartening that this integration could be further tightened, and we could have formal integration across different states. Right now it is active in Maharashtra. I see a picture of World Skills Center there, which is where I was couple of days ago and was planning to go today as well. We run a center in World Skills Center as well for hospitality. So the opportunity is immense, and I think the youth that care leavers especially are the ones who are the most needy of a course and an organization, or the work that we do. So it's a beautiful fitment, and the integration could be strengthened. That's one. And I believe when I also think about what more can be done, I think the reasons why students who come to us probably cannot make the most of our programs, they drop out for certain reasons. Couple of reasons that which is a lack of, or the expense that they have to bear for stay and food. That's one. Second is also they need mentoring. Because the picture that they have about the job or a profession, maybe retail ki baat le lo, hospitality, whether it is food and beverage service or even a kitchen role, these roles are taxing roles, especially in the early days and the first year and a half. And you need someone who motivates, guides, mentors the students. Third thing I think that is needed, and that is what I realized sitting here, is when a student walks into our center, for the center team, it is no different if it is a care leaver or if it is a student who is coming from a community, or someone has seen an advertisement on Facebook or a promotion on Facebook and walking into our center. For the center team, it is no different. So if you are referring, if anyone is referring students to our centers, I think it's important that the mobilizers and the team on the center team is sensitized that these are students who come from this background,
and then we could look at different options rather than rejecting them for documentation or saying that we can't offer this course because you're not eligible for it for certain things. We could look at our network across India and see where that student can be better fit, or even not within Tata Strike, but other skill development organizations or other organizations. We have programs on entrepreneurship. Which is, if they want to start something of their own, there are organizations who provide seed capital. We provide the training, we provide seed capital, we provide mentoring, hand-holding, business case development, helping them actually get off their feet on running a small business. We could look at those options. Today, the team does not look at that option because for them it is anyone who walks into our center. So that's one. I think the second thing which CSA does beautifully, and that's what I was speaking, was about support subsequent to the course, right? Being in touch with them. Because for us, once they enter the center and take an admission, and for the facilitator and the trainer, they are mainstreamed. Everyone is equal and everyone undergoes skill development, and subsequent to that, we get in touch with them as any other alumni. But any additional support that is needed for is something that CSA does, and I think that is needed, that is very much needed for this integration. We have similar integrations with other organizations, NGOs as well. Some who are disadvantaged for various reasons, whether it is Bharti for SCST or whether it is correction homes in troubled areas, especially Naxal areas, affected areas, or Jammu and Kashmir. We have those integrations where that additional layer of support is needed, and the parent organization does provide that. I truly believe that these integrations will make a world of a difference to quite a few. For example, just the scale at which we operate, for us, it was always about quality and scale. Can we, because the problem of unemployed youth is huge. What could be our, and can we contribute significantly, was what we started Tata Strive with. And today, if you look at our capacity, 20,000 students pass out of our centers, get into jobs every year. Plus, there are 25,000 others who are part of different programs. So, around 50,000 each year is our annual capacity of direct impact. And if a good portion of that is through integrations like these, we would be making a huge difference to the most needy youth. So, that's my quick overview and few thoughts. Thank you, Ameya. That's very positive and forward-looking. I think 2 points that you raised. One, of course, of looking at extending this similar kind of work to other parts of the country where you already are present. And second is to really strengthen the ecosystem. We have a very robust skill development department in many states, and the government of India and state governments are investing hugely in that. And you mentioned about other corporates that are also doing skill development work. So maybe champions like you can take the lead and make that investment in building the ecosystem to really cover care levers across the country. So thank you so much, all of you, for your very important inputs. I'm going to take, we have 5 minutes? Yeah. So we'll just do one really rapid round of hearing from you. What would you consider as a priority for building this convergence between government, civil society, the CCIs, as well as the corporates? Give us one priority area or one suggestion that you have for taking this forward. I'll start with Avasthi ji. We would like to hear from you. मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम लोगों को जो हम मेंटरिंग कर रहे हैं, 2 चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या हम अक्रॉस स्टेट या अक्रॉस कंट्री सारे जो केयर लीवर्स हैं उनको बराबरी से मदद देने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ पॉकेट्स में बम्बार्डिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुबह से शाम तक वही बच्चा हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो रहा है। कि अभी किसी ने कहा कि उसके अभी वो IDFC के जो चेयरमैन आए थे, उनने चेयरपर्सन आए थे, उनने कहा कि बहुत उसका टाइट शेड्यूल है, मॉर्निंग में वो प्रेयर भी करता है, फिर ये भी करता है, वो सीखता है, ये सीखता है। आप घर के बच्चे को देख लीजिए,
जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मुझे रश हो रहा है इन बच्चों से कि इनको इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, मेरे बच्चे को क्या सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बच्चे, मेरा बच्चा डिप्राइव्ड है और ये बच्चे बहुत ज़्यादा, ये बच्चे डिप्राइव्ड है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयोग इनके साथ कर रहे हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कितना हम इनको देना चाहते हैं और कितने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि रेबल पहले वो वहाँ हो रहा था घर में, जिसके कारण वो भाग के वो यहाँ आ गया था, वो यहाँ रेबल हो जाए कि अब उसको घर यहाँ से भाग के जाना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग ये कि जैसे मैं उस समय भी मैंने वहाँ अपने चेयर पे जब मैं वहाँ था तब मैंने कहा कि गर्ल और बॉय, कि आपको ये देखना चाहिए कि बॉय को कितने ज़्यादा लर्निंग्स की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है, और बॉय को कितना सिखाने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा कि जो CCI लेवल पे हमको और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है और ज़्यादा हमको प्रयास करने की ज़रूरत है। स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स हैं, सारे फंड की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इनफ फंड हमको दे के रखा है। और उसके बाद जो हमारे फंडर्स हैं, जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ रहने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कोई स्कीम में कमी है। केवल हम सबको सिनर्जी एक साथ आके सामने आके उन बच्चों की मदद करने की ज़रूरत है। Thank you. So synergy is the key in coming together, and we really look at taking advantages of all the schemes that are already there. Aniket, aapse So give us one. Sure. So I would just add on to what Avasti sir said. I think the need of the hour is that connecting force who's able to connect the dots really well. So while there are beautiful examples with Vinimay Trust, उसका learnings क्या CCI तक आ सकता है, जो schemes government की है क्या वो CCI तक पहुँचाने का काम, तो वो connecting dots कौन कर रहे हैं, या वो skilling centers को sensitization का जो काम है, तो I think it all amounts to and maybe CSA and is one organization right now I'm looking at has the potential and the bandwidth to actually be the Fevicol. वो फेविकॉल का जोड़ है, क्योंकि हमें ऐसा एक मजबूत जोड़ चाहिए। वो एक्चुअली वो कॉन्शियस एफर्ट किसी एक नहीं करना चाहिए। अगर हम सबको बोले ना आप एक दूसरे से जुड़ते जाओ, हम एक दूसरे काम में बहुत अपने ही काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, तो कैन समवन टेक अप द ओनर्स कि नहीं मैं वो करूंगा, वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम वो करेंगे और हम वो फेविकॉल बन जाएगी, सारी सिस्टम पूरी कनेक्ट हो जाए। तो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। That was a very nice symbol. We need the catalyzing forces. We need the facilitators that will enable this convergence between everything that exists. Thank you so much. Ameya, can we hear from you? Sure. I think couple of immediate next steps that come to my mind is, one is sensitization of the team. So I can get that the entire mobilization team across all centers on a call, and if CSA can facilitate a session so that they are sensitized and those connections are built at a local level. Right now it is there in few places. It's there in Pune, it's there in Mumbai, it's probably also there in Goa. I saw a couple of students who have been referred to in Goa as well. But that could be done across the country. That's one immediate next step. The second thing I can offer is we also have a counseling platform. Now this is not a counseling platform for all counseling, but this is career counseling platform. Now for career counseling platform, we could distribute the link to every CCI that's there, and anyone who's crossing 17, 18, they could at least register the students there. And we could then see if we could channel our centers or other centers for the possible next step. I think these are immediate next steps that come to my mind, which could tighten that integration. And I think there's also a very great opportunity that there are several care levers networks in different states that are also sort of advancing the needs and the rights of care levers, and maybe that kind of connect and linkages is something that one can definitely facilitate. I think as UNICEF, we would also like to kind of play that role in sort of making those linkages. Just 20 seconds more, I would invite anyone who is interested to our centers, because knowing each other better is the first step towards building those integrations. So Fantastic. That's something. And I think there are a lot of organizations from across the country, and that would be a great invitation to take up. Thank you so much. And over to you. हाँ, क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट बोलना है, मेरे को जो सोचा था
तो कॉर्पोरेट का छोड़ देता हूँ, मैं जिम्मेदारी जैन साहब को छोड़ देता हूँ कि IDFC शुड डू द टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। बट मुझे लगता है CCI के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमने ये देखा कि ये जो हम 18 के बाद काम कर रहे हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये आइडियली नहीं होना चाहिए था या होना ही नहीं चाहिए। तो इसको क्या करेक्शन करना है शायद आगे, तो हमें ये सब जो सीखा हम सब सीख रहे हैं, हम बार बार हम प्रिवेंशन में जाना चाहिए ना। हम यही सोच रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, इसके लिए कैसा टैकल करेगा, इसके लिए क्या क्या करेगा, वो शायद एक कट ऑफ होने का और आगे के लिए होना चाहिए। बट एक कट ऑफ ऐसा होना चाहिए कि हम पीछे मुड़ के देखें और इसको देखें कि ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स हो गया है CCS चल रहा है, हम वापस सेम प्रॉब्लम्स पे अटके, कुछ भी नहीं बदला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट करो, ऐसे कंट्री इम्प्रूवमेंट हो गया है, इतना पावर है, बट ये एक छोटा चीज़ में हम लोग बिल्कुल नहीं हैंडल पाए। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग ये सीखना चाहिए कि एक घर में जो होता है, बार बार हम कहते हैं घर का परिस्थिति का जो नॉलेज होना चाहिए, मुझे लगता है वो CCI में होना चाहिए हर चीज़ का, और वो अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बाद में मालूम पड़ा कि ये मोबाइल में ऐप क्या होता है या ज़िंदगी में क्या होता है या कैरियर क्या होता है। मुझे लगता है हर चीज़ एज ए सिस्टम किधर तो रहना ही चाहिए, ऑन गोइंग बेसिस। टेक्नोलॉजी हो सकता है, कियोस्क हो सकता है, जो बार बार चलते रहे कि ज़िंदगी में क्या होता है बाहर का माहौल, वो टच नहीं होएगा। हम बार बार 18 के बाद बहुत स्ट्रगल होता है। आज जैसा हमने बोला 5-6 जन को देगा, वैसा बहुत कम परसेंटेज से स्ट्रगल बहुत होने वाला है। बहुत सारे लोग किधर गए पता भी नहीं रहेगा, शायद हमारे पास डेटा ही नहीं है। बहुत सारे जो आगे हमसे निकले हैं वो शायद स्लिप थ्रू हो गया, कारपेट के नीचे से घुस गया, हमको पता भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि जो छूट के गए हैं उनके लिए भी सरकार बहुत काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जिसके साथ काम करते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन का सुविधा ही नहीं है, हम आयुष्मान भारत बना ही नहीं सकता है। हम अब आज जब बात कर रहे हैं वो 15 से 18 के साल वालों को, वो भी कोई मध्य प्रदेश में शायद, पूरा सरकार इंडिया के लिए सोचा है कि मालूम नहीं है। मुझे लगता है हमें ये जो 18 के बाद के लोग हैं उनके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, उनको कोई सुविधा नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर लिया है, बट इन जैसे लोगों को कोई बात भी नहीं कर रहे, सिस्टम अलाउ भी नहीं करेगा। राशन कार्ड नहीं है, ड्रॉप, यू कैन नॉट इवन गो प्रोसीड फर्दर। सो मुझे लगता है ये 2 चीज़ करके मैं बोल दूंगा। और मुझे एक उदाहरण देना है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1% रिजर्वेशन के लिए ऑफिस सर्टिफिकेट और वो प्रक्रिया एक मिशन मोड में चलाई थी सारे CCIs में, तो शायद उस तरीके के कोई इनोवेटिव अप्रोचेस लेकर हम ये जो गैप है उसको ब्रिज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल। Thank you everybody. I would also like to request Madan Gopal sir from co-founder from AFEC to give away the mementos to the esteemed guest over panel. Sir, please. Yeah, please. Thank you so much. So because everyone was very curious to know about Sachin, I'll briefly tell about Sachin, what he does and how he came in our contact. So Sachin जो है वो औरंगाबाद ज़िले से है, महाराष्ट्र में, और जब वो CCI में था, एक्चुअली हम उसको तब नहीं मिल पाए थे जब मैं CCI गई थी किसी और केयर लीवर बच्चों के साथ बात करने के लिए। मेरी जो आंखें थी वो CCI की दीवारों से हट नहीं पा रही थी। बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क सारी दीवारों पे था, कुछ पोस्टर्स बने थे, कुछ पोर्ट्रेज बने थे। मैं बात तो दूसरे केयर लीवर से कर रही थी, बट आंखें बार बार उसी आर्ट वर्क पे जा रही थी। और ना रहते हुए मैंने CCI के जो सुपरिटेंडेंट थे उनसे पूछा कि ये आर्ट वर्क आपने किससे करवाया है, बहुत सुंदर है, इससे तो आंखें हटती ही नहीं है। तब उन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ स्टूडेंट था, अभी तो 18 कंप्लीट हो गया, उसको संस्था छोड़नी पड़ी, वो भी हमारे साथ नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ अगर हमारी मुलाकात उनसे करवा सकते हैं। और इस तरह से सचिन बागुल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हमारी सपोर्ट में आए।
सो सचिन अभी डिप्लोमा इन आर्ट टीचर का कोर्स कंप्लीट करके जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अब अपना करियर परस्यू कर रहे हैं और उनका जो फोर्टे है वो कैरिकेचर और पोर्ट्रेज है। थैंक यू सो मच।